नमस्कार सर, ମୋ ଭଏସ କ୍ଲିୟର ଅଛି? ସାର୍ ମୋ ଭଏସ ଆସୁଛି? ହଁ ସେଟା ଠିକ ଅଛି। ଓ ପ୍ରଥମତଃ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଗଣଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହ ପ୍ରଣିପାତ ଏବଂ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରି ମୁଁ କୁମାରୀ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବିଚାରଧାରା ଶାଖା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଅଛି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ତାର 72ତମ ଏହି ପାଠଚକ୍ର ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଅଛି। ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବେଦାନ୍ତ। ପ୍ରତି ମାସ 24 ତାରିଖ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ରହିବ କି ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଅନେକ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ସାର୍ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ବନ୍ଦନା ପାଠ କରିବାକୁ। हरि ओम सर्वेषां कृते नमो नमः। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। हरिः ओम। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री यद्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरिषः स्ताभिरष्टाभिरिषः। ପ୍ରାରମ୍ଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭଉଣୀ ସୁଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଜୟଙ୍କୁ ବିବେକବାଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ନିମନ୍ତେ। ମାନଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଲୋକ ସଂସଦ ପକ୍ଷରୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱବିଜୟିନୀ ଲେଙ୍କା ବିବେକବାଣୀ ପାଠ କରିଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ ମନନ, ତାପରେ ଅଭ୍ୟାସ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବାକୁ ହେବ, ତାପରେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅନେକ ବିଷୟ ଯାହା ଆଦୌ ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତାହା ପୁନଃ ପୁନଃ ଶ୍ରବଣ ଓ ମନନ ଫଳରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକୃତ ହୋଇଯିବ। ସବୁ କଥା ଥରକରେ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି। କେହି କେବେ ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷିତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜେ ନିଜେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ବାହାରର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଉଦ୍ଦୀପକ ମାତ୍ର। ସେହି ଉଦ୍ଦୀପନ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଗୁରୁ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସକଳ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବାଣୀକୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରର ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁଲାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଲୋକକବି ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ପୁରାଣ ବାଚସ୍ପତି ଡକ୍ଟର କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ ଶତପଥୀ ସାର୍ ମହୋଦୟ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ସାର୍। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ସଂସ୍କୃତ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାବରେ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିଷଦ ଉତ୍କଳ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷକ ମହାସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ସଂଘ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ଅଖିଳ ଭାରତ ଅମୃତବାଣୀ ଆଦର୍ଶ ଶୋଧ ସଂସ୍ଥାନର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବେ ସେ ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର କୌଶଳର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ଏସିଆଟି କଟକର ଶିକ୍ଷା ମଣ୍ଡଳ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଶାଳାରେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଓ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଶାଳାରେ ଅତିଥି ଆଲୋଚକ ଭାବେ ସେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସ୍ୱାଗତ ଆଜିର ଏହି ପାଠଚକ୍ରକୁ ଆଗକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ।
अच्छा टिके भीतर लाइट टा टिके दे हरि ओम हरि ओम ओम नमः माता पितृभ्यः नमः गुरुभ्यो सज्जनेभ्यो नमो नमः परम सौभाग्य जे मु वर्तमान गाड़ी भितरे अच्छी निश्चित कहले पाखापाखि कार भितर ही ए कार्यक्रम रे जोग देइछे तेणु मते निश्चय सुविधारे असुविधा होचे एवं मु मध्य जहाँ कहबी भावुचे समस्तଙ୍କ पाखक जाई परिबो कि नाही तबे अति आग्रहर कथा जे आदर युव अध्यापक डॉक्टर विभूति भूषण महापात्र आज आम मानको दिव्य वाणी प्रदान करिवे से महाशय स्नातकोत्तर संस्कृत विभाग राजधानी महाविद्यालय अध्यापक पूर्वर थरे से जोग देइथिले अति सुंदर भाव में कार्यक्रम परिचालना करथिले एवं मोर अनुरोध रक्षा करी से पुनर्बार आज आम समस्त को विवेक वाणी रे विवेकानंद दर्शन रे आप्यायित करिवे से महाशय विषय रे वर्णना कले बहुत समय लागिब तथापि से मोर पुत्र तुल्य मते यथेष्ट सम्मान दियंती तांकर संस्कृत सुभाषित संग्रह समग्र ओडिया जाति पाई एक उपादेय ग्रंथ पैपलाद संहिता उपरे से गवेषणा करी समग्र विश्व को चमकई देइछन्ति जे ओडिसा रे अथर्व वेदर प्रभाव किपरि थिला वेद वेदांत उपरे तांकर अजस्र ज्ञान रहिछि एवं से जो प्रकार भाव रे दिग्दर्शन दियंती से जने छात्र वत्सल अध्यापक समय स्वल्पता दृष्टि मु से महाशय को अनुरोध करुछि से जने सुकवि भल आलोचक हिंदी इंग्राजी संस्कृत भाषा रे तांकर अगाध पांडित्य रही ना हूँ विभूति भूषण महापात्र बांकीर इष्टदेवी चर्चिका से बरपुत्र विभूति भूषण जहाँ को आम शिवं को बोली कहू साक्षात शिवं परी से समस्त दुख कष्ट को सही अमृत वितरण करती मु वर्तमान डॉक्टर विभूति भूषण महापात्र को अनुरोध करुछि से आम समस्त को विवेकानंद दृष्टि दर्शन वेदांत उपरे किछि आलोकपात करिवे डॉक्टर महापात्र नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। स्वामी विवेकानंद लोक संसद केन्द्रापड़ार आजिर एही सारस्वत संध्यारे पौरोहित्य करुथिबा आम समस्तिंकर सम्माननीय वरेण्य पूजनीय लोककवि डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी महोदय जहांकर आशीर्वाद रे आमे एतबाट पर्यंत आसीबाकू सक्षम हेछु एवं अधीत बोध आचरण एवं प्रचार ये चारोटी माध्यम रे जे निजको लोक जीवन रे उत्तरित करिसेंती से डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी महोदय को मु प्रणाम जणाउछि। संयोजना सुश्री ऐश्वर्या स्वाई महोदया तांको मध्य धन्यवाद जणाउछि एवं उपस्थित समस्त सुधीवृंद जे माने उपस्थित अछंती समस्त को शुभ संध्या एवं प्रणाम। आजिर विषय जहा जे स्वामी विवेकानंद दृष्टि रे वेदांत दर्शन यह किसी नुआ कथा नुहे। स्वामी विवेकानंद समय अर्थात विंश शताब्दी प्रथमार्धरु ये विषय रे अनेक मनीषी तांका चिंता एवं चेतना रे एक कथा को ग्रहण करिसेंती प्रचार करिसेंती से मध्य लोक जीवन रे एहाकू ग्रहण करिबा पई प्रवर्तैछंती। सेथिपई समग्र विश्व रे श्री रामकृष्ण मिशन एवं श्री रामकृष्ण का मार्गर जेते सब साधक अछंती से माने ए विषय रे बद्ध परिकर तेणु विषयर
नूतनत्व नहीं किंतु प्रश्न उठुची जे ठीक 100 वर्ष हो गलानी वर्तमान समय रे ई जो वेदांत जहार परंपरा नारायण ठारू आरंभ हो शंकराचार्य द्वारा पुष्पित पल्लवित हो आसी ताकू आउ एक शंकराचार्य भाव विवेकानंद को परिस्थिति रे आनिक आम मान पाखु पहुंचाई देले। विवेकानंद स्वामी विवेकानंद समय बेलू भारत वर्षर सामाजिक अवस्था राजनैतिक अवस्था एवं जदि ताकू आमे ऐतिहासिक दृष्टि विचार करिबा ताहले स्वामी विवेकानंद को नव शंकराचार्य कहले अत्युक्ति हेब नहीं। जो समय रे शंकराचार्य आविर्भाव घटी प्रधान मल्ल न्याय रे ब्राह्मण्य धर्म को आक्रमण करुथिबा अन्य समस्त दार्शनिक माननकु एवं बौद्धिक लोक माननकु से निजर शास्त्र द्वारा से माननकु परास्त करी तार दर्शनर तत्व को उपस्थापित कले प्रतिष्ठा कले एवं तत्कालीन समय रे ताहा समयर डाक थिला किंतु विवेकानंद समय बेलू समयर डाक भिन्न हो गला। प्रायोगिक जीवन रे शिल्पर द्रुत विकास शिल्पायनर विकास घटुची लोक वस्तु केन्द्रिक जीवन यापन आड़कू माड़ी चलछंती तेणु यही परिप्रेक्षी रे विवेकानंद से जो परंपरा को समान परंपरा को गोटे नूतन दृष्टिभंगी आम मान पाखे पहुंचेले जहाँ सांप्रतिक समय रे 100 वर्ष पूर्वे जेतिकी दरकार नथिला सांप्रतिक समय रे अत्यंत आवश्यकता अनुभव हुए। से दृष्टि से या गोटे इंग्रजी भाषा कहती नियो वेदांत बा नव वेदांत बा प्रैक्टिकल वेदांत बा व्यावहारिक वेदांत भाव से तांकर शिष्य प्रशिष्य मान को शिक्षा देछंती। से वेदांत साहित्यर दार्शनिक पृष्ठभूमि को जेतिकी विचार करिसेंती तार प्रायोगिक दिग को से सेतिकी जनमानस रे प्रवाहित करैबा पई तांकर जीवन रे तांको ग्रहण करबा पई से तार बंदोबस्त करछंती गोटे भित्ति प्रतिष्ठा करछंती। तेणु आजिर विषय वस्तुर जहाँ आलेख्य जे आधुनिक मनुष्य जीवन प्रसंग रे नव वेदांत और व्यावहारिक वेदांत। आधुनिक युग हेउची विज्ञान प्रजुक्ति उपभोग एवं द्रुत परिवर्तन युग। एठी दौड़ुथिबा जीवन शैली मनुष्य को भौतिक सुविधा देले भी तांको अंतर यात्रा को धीरे धीरे शून्यतारे ठेली देछि। आत्मिक संतुष्टि मानसिक सांत्वना ये सब आजिर मनीष पई दुर्लभ। एभली एक समय रे भारतीय दार्शनिक परंपरा रे स्वामी विवेकानंदंकर नव वेदांत बा व्यावहारिक वेदांत मनुष्य जाति पई एक महान अवदान। आधुनिक मनीष पई शक्तिशाली दार्शनिक आलोक स्तंभ भावे एही नव वेदांत प्रस्तुत हुए। पारंपरिक अद्वैत वेदांत को नूतन दृष्टिकोण व्याख्या करी ताहाकू आधुनिक मनीष सहित जोड़िबारे सिद्धहस्त थिले स्वामी श्री विवेकानंद। से केवल धर्म एवं आत्मतत्व ने कथा कही नथिले बरं सामाजिक सेवा मानवर एकत्व जीवनर नीति और चरित्र गठन रे वेदांतर प्रयोग को देखैबा पई से बाहर थिले। तांकर चिंताधारा को आजिर गवेषक माने कहउछंती नियो वेदांत बा नव वेदांत एवं कर्म रे प्रयोग को कहउछंती व्यावहारिक वेदांत। वेदांत कहले प्रथमे आमे जहा बुझू जे बहुत लोक कहंती जे वेदर अंत एवं अंत शब्दर जोड़िए अर्थ गोटे होची शेष गोटे होची तार गर्भ। तेणु सेथि पई ब्रह्मसूत्र रे मध्य शास्त्र जो नित्वात् जो सूत्र रे ताको व्याख्या करा जायछि। तबे आमे साडू को न जाय आमे साधारण भाव रे देखिबा जे वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण। वेदांत कहले उपनिषद को बुझा जाए अर्थात वेदर चरम अभिव्यक्ति होची उपनिषद। वेदांत नाम उपनिषद प्रमाण तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादिनी च।
एवं ब्रह्मसूत्र श्रीमद् भगवत गीता एवं समस्त उपनिषद होची प्रस्थान त्रय वेदांत शास्त्र किंतु स्वामी विवेकानंद से तांकर जो नव वेदांतर रूपरेख तार जो तत्व तार जो स्वरूप को यदि आमे देखिबा ताहले आमे देखिबा जे यहा केवल पारंपरिक वेदांतर पुनरावृत्ति नुहे यह होची आधुनिक समन्वयमय एक वेदांत दर्शन जेउठी पुरातन अद्वैत दर्शन को आधुनिक मनुष्यर समस्या सहित मेल करा जाउछि। पारंपरिक वेदांत मुख्यतः मुक्ति वैराग्य माया तत्व एवं संन्यास को अधिक गुरुत्व दिला बेले विवेकानंदंकर नव वेदांत संसार मध्यरे रही मुक्तिर पथ खोजिबा को सिखाए। यह हेउछि स्वामी विवेकानंदंकर आम माननकु प्रथम एवं आवश्यक तंकर परिवर्तनात्मक अवदान। स्वामीजी स्पष्ट करछन्ति तंकर जे मनीष दुर्बल नुहे मनीष जन्मजात भावे दिव्य तांक भितरे असीम शक्ति रहिछि जन्मम कर्मम च मे दिव्यम। श्रीमद् भगवत गीता रे जो कथा जे तांक भितरे मनीष भितरे असीम शक्ति रहिछि एही विचार आधुनिक मनीष पई अत्यंत प्रेरणादायक। कारण आजिर युवपीढ़ी अनेक समय रे निजको दुर्बल अनिश्चित एवं असमर्थ बोली भाबी बसुछि। तेणु नव वेदांतर स्वामी विवेकानंद पांचटा मूल धारणा हमकु दैछन्ति। सेही पांचटा धारणा को जदि आमे बुझिबा ताले नव वेदांत आम पाखरे स्पष्ट हो जिवो। कौन सी ना आत्मा होची दिव्य और असीम। वेदांत कहूची ब्रह्मैव केवलम नित्य सकल जड़ समूह अनित्य। स्वामी विवेकानंद कहउछन्ति आत्मा होची दिव्य एवं असीम एवं समस्त मनुष्य मूलतः एक। तृतीय रे कौन कहउछन्ति समस्त धर्म सत्यर भिन्न भिन्न मार्ग। सत्य अन्वेषण रे जेते गुड़िए धर्म सब से सब गोटे गोटे मार्ग एवं मनुष्य सेवा ही माधव सेवा सेवा जन सेवा ही भगवत सेवा। ये हूँ नव्य वेदांतर चतुर्थ धारणा। पंचम धारणा हूँ संसार को सकारात्मक भाव में ग्रहण। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या कही जगत को इतस्तत भाव में आमे परित्याग करिवार जो पारंपरिक चिंता जार अंतर्निहित अर्थ अलगा थिला किंतु बहिर अर्थ को आमे ग्रहण करी संसार को तुच्छ बेली माने करूथुलु। स्वामी विवेकानंद कहउछन नाही संसार को गोटे सकारात्मक दिगरे यदि ग्रहण करिवो ताहले ई पांचटी कथा म आउथरे कहूची। आत्मा होची दिव्य एवं असीम समस्त मनुष्य मूलतः एक समस्त धर्म सत्यर भिन्न भिन्न मार्ग जनसेवा ही भगवत सेवा एवं संसार सकारात्मक ग्रहण। यही धारणा गुड़िक आधुनिक समाज रे कौन करिवो ना धर्मीय सहिष्णुता सृष्टि करिवो सामाजिक समन्वय सृष्टि हेबो एवं मानव एकत्व शक्ति युक्त हेबो। तेणु ये होची नव्य वेदांतर तत्व एवं स्वरूप। जदि आमे देखिबा ताले व्यावहारिक वेदांत कौन ना व्यावहारिक देव जो वेदांत होची धर्मरु जीवन दर्शन। स्वामी विवेकानंदंकर ए व्यावहारिक वेदांत होची सबुठु बड़ दान विश्व को। स्वामी रंगनाथानंद ताकर गोटे छोटिया बहिटिया लिखिछन्ति प्रैक्टिकल वेदांत। हेतरे से कहउछन्ति समग्र विश्व को जेते बौद्धिक मनुष्य माने जहा सब दान करिसन्ति सेमानंकर निर्यास स्वामी विवेकानंदंकर व्यावहारिक वेदांत। तेणु से कौन करथिले ना धर्मस्य तत्वम निहितम गुहाया जो कथा को से कहितले उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत महाजन जैन गतस्स पंथा। ये जो कठोपनिषद जो वाक्य से कहउछन्ति वेदांत को से गुहारु से जो निगूढ़ जगारु एवं पुस्तक रो बाहर करी से दैनंदिन जीवन रे माटी रे रखिदेले आम मन हाथ रे रखिदेले। से कहले केले यह पुस्तकीय वैचारिक सिद्धांत नुहे यह केवल विचार बा मस्तिष्कर विषय नुहे यह होची कर्मर विषय। दैनंदिन जीवन रे तुमे वेदांत को प्रयोग करिवो। तेणु वेदांत मस्ट बी इंटेंसली प्रैक्टिकल। से कहउथिले कथा तांकर अर्थ वेदांत केवल मंचर उपदेश नुहे दैनंदिन कथावार्ता कर्म परिवार
एवं समाज रे यार प्रयोग बा अनुष्ठान हवा दरकार। व्यावहारिक वेदांत मनीष को चारोटी कथा शिखाए। यही चारोटी कथा को जदि आमे बुझी परिबा ताहले व्यावहारिक वेदांतर सिद्धांत को आमे बुझी परिबा। प्रथम सिद्धांत जीवन रे सत्यवादी हवा। जीवन रे प्रथम सिद्धांत होची सत्यवादी हवा, सत्य प्रति निष्ठा। द्वितीय निजर दायित्व बोध को निजे निर्माण करिबा। मोर कौन दायित्व, मुझे मोर दायित्व बोध को निजे निर्माण करिबी एवं अन्य माननकु सेवा करिबी। तेन त्यक्तेन वंजिता, मु निजे बंचिबा सहित अन्य को सेवा करिबी। एवं चतुर्थ सिद्धांत संकट समय रे दृढ़ मनोबल रखिबा। ये चारोटी सिद्धांत व्यावहारिक वेदांतर चारोटी होची मूल कल्पतार। तेणु तारी उपरे ही व्यावहारिक वेदांत स्थिरीकृत होइछि। तेणु मनुष्य को केवल व्यावहारिक वेदांत धार्मिक करेनी, नैतिक सामाजिक एवं मानसिक भाव से दृढ़ीभूत करे। तेणु आधुनिक मनुष्य जीवन में यार एक प्रासंगिकता रही। ये जो आधुनिक मनुष्य जो सांप्रतिक समय आम जो देखुचे से मनुष्यर तीनटा हूँ मुख्य संकट। ये तीनटा संकट देकी से सब बेले गति करुछि। गोटे हूँ तार आत्मिक संकट, गोटे हूँ मानसिक अशांति, गोटे हूँ सामाजिक विभेदता। गोटे आत्मार संकट, गोटे मानसिक अशांति, गोटे हूँ सामाजिक विभेद। तेणु नववेदांत यही समस्त संकट को आध्यात्मिक एवं वैचारिक भाव में समाधान करने दिगरे दृढ़ पथ प्रदर्शन कराए। यह मनुष्य को शिखाए जे निज को दुर्बल बोली न भावी निज भीतर थिबा देवत्व को जागृत कर। एवं व्यावहारिक वेदांत आसी आधुनिक मनुष्य को कहे निज को बदलाओ, समाज आपे आपे बदली जीव। तेणु नव्य वेदांत कहूची जे निजर देवतत्व को जागृत कर। व्यावहारिक वेदांत कहूची निज को बदलाओ, समाज आपे आपे बदली जीव। तेणु यही नव्य वेदांत रे चतुर्विध योग को समन्वय करिसेंती स्वामी श्री विवेकानंद। तांको दार्शनिक चिंताधारा रे अद्वैत वेदांत को से प्रचार करनथिले, किंतु भारतीय योग दर्शन को जोड़ी संपूर्ण जीवन दर्शन निर्माण करथिले। तांको मतरे वेदांत केवल वैचारिक नुहे, यह मनुष्यर समग्र जीवन को छुए। सेथिपाई चारोटी योग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग एवं राज योग ताको एक समन्वय रूप से देखाइथिले। ज्ञान योग कौन करे ना मनुष्य को सत्य एवं असत्यर भेद करबा पे सिखाए जे सत्य कौन एवं असत्य कौन, राइट एंड रॉन्ग, ये कॉन्सेप्ट से तुमको सिखाइब ज्ञान योग। आधुनिक युग रे जेउठी भूल सूचना, भ्रांत धारणा एवं मानसिक आवरण बेसी, सेठी यही योग बुद्धि को स्पष्ट करिबार साहाय्य करे। नव्य वेदांत रे ज्ञान योगर अर्थ होउची निजर सत्य स्वरूप को जानिबा जे मु शरीर नुहे, मु मन नुहे, मु होउची चिर नित्य आत्मा। यही बोध आधुनिक जीवनर भय, असुरक्षा एवं अनिश्चयता को ह्रास कर दिए। ये हैला नव्य वेदांत रे ज्ञान योगर प्रयोग। कर्म योग होउची नव्य वेदांतर प्राण शक्ति, जो नियो वेदांत। विवेकानंद कहिथिले मनुष्य जीवन रे कार्य को त्याग करि पारे नाही, किंतु से तार फल आसक्ति को त्याग करि पारे। एक कथा श्रीमद् भगवत गीतार मध्य कथा। आधुनिक आमे जो सब पेशाजीवी मनुष्य, शिक्षक, कर्मचारी, कृषक, व्यवसायी, ये समस्तंक पई ये धारणा अत्यंत प्रासंगिक हबा। जेते बेले मनुष्य निज कार्य को निष्काम भाव रे लोभ और स्वार्थ छाड़ी करे, सेते बेले से ही कर्म सेवा और साधना रे परिणत हो जाए। यह मनुष्य को चाप, असंतोष एवं अस्थिरता रक्षा करे। तेणु ज्ञान योग आमको कौन करे, निजर भय एवं असुरक्षा अनिश्चितता को ह्रास करे। कर्म योग आमको मानसिक चाप एवं असंतोष एवं अस्थिरता रक्षा करे। भक्ति योग कौन करे ना आधुनिक मनुष्यर हृदय को स्पर्श करे। वेदांत रे भक्तिर प्रयोग स्वामी विवेकानंद एक महनीय अवदान। कठोर वैज्ञानिक जीवन शैली मनुष्य को शुष्क कर देउछि, जेउठी भक्ति जीवन को स्निग्ध, करुण एवं मानवता प्रदान करुछि।
विवेकानंदଙ୍କର नियो वेदांतरे भक्तिर अर्थ होउची केवल ईश्वर प्रति धर्मीय भक्ति नुहे, यह मनीष समाज और सृष्टि प्रति भल पाइबा। यही भाव आजिर समाज रे सहिष्णुता एवं सामाजिक समन्वय सृष्टि करे। तबे एई क्षेत्र रे राजयोग होउची मनीषर मानसिक शासनर पथ। आधुनिक जीवन रे अत्यधिक चिंता, उत्कंठा एवं जहाँ को आमे कहूछु डिप्रेशन बा मनोविकार एगुड़ा सब बढ़ुछि। तेणु ध्यान, प्राणायाम एवं योगाभ्यास मनुष्य को आंतरिक समतुल प्रदान करे। तेणु विवेकानंदଙ୍କର राजयोग आज विश्वव्यापी योग आंदोलन रे गभीर प्रभाव पकाइछि। तेणु नव्य वेदांत रे कर्मयोग, ज्ञान योग, कर्मयोग, भक्ति योग एवं राजयोगर एक समन्वित रूप स्वामी विवेकानंद प्रस्तुत करिसेंति। नव वेदांतर आउ एक विशेषता होउछि एहा परिवार को आश्रम भली गोटे पवित्र साधना क्षेत्र भाव में देखे। स्वामीजी मतरे जे संसार को त्याग करबा ठारू अधिक महत्वपूर्ण होउछि संसार रे रही आध्यात्मिक जीवन बिताइबा। आधुनिक परिवार रे संघर्ष, व्यक्ति केंद्रिकता, संपर्कर भंगुरता बढ़ुछि। एही समस्या रे नववेदांत एक उपाय देखाए। से कहे पति पत्नी केवल भौतिक बंधन नुहे, यह दुईटी आत्मार समन्वय। यही चेतना थिले सम्मान, सहयोग एवं सहिष्णुता आपे आपे गढ़ी उठे। पितामाता व्यावहारिक वेदांतर अर्थ हेउछि संतान को केवल पेशागत सफलता पाई नुहे, ताकू नीति, करुणा, सेवाबोध एवं आत्मविश्वास पाई गढ़िबे। जदि गोटे पिला पिला दिनरु, छोट दिनरु यही बोध पाए जे मु दिव्य शक्तिर धारक, तेबे जीवन रे से केबे आत्महीनता मनोभाव भोगिब नाही। जहा प्रति क्षेत्र रे आमे देखुचे कॉलेज रे पाठ पढ़वा पिला परीक्षा रे फेल होउची, जाके नदी रे डेंकी जीवन हारुची, चाकरी पाउनी, पागल भली मद्यप होउची। ए सबुर मूल से कहउछन जे पारिवारिक जो पितामातांकर दायित्व ता भितरे भरिबे से दिव्य धारणा को जे तू असीमर शक्तिर प्रतीक, तू अनंत शक्तिर प्रतीक, तू क्षुद्र नुहे, तू लिमिटेशन नुहे, तू जहाँ विचार करुछु ताठू बहु ऊर्ध्वरे, ता भितरे शक्ति जागृत हब। तेबे शिक्षा क्षेत्र रे ये तो गला पारिवारिक जीवन रे नव वेदांत बा व्यावहारिक वेदांतर प्रयोग। शिक्षा क्षेत्र रे नव वेदांत स्वामी विवेकानंद मतरे आधुनिक शिक्षा व्यवस्था रे गोटे बड़ दोष होउची यह मनीष को केवल कुशलता देउची किंतु कला शिखौनी। मनीष जीवन जीवार जो कला शिक्षा रु पाइबा कथा से कला से पाउनी। से कौन करुची ना से कुशली होउची। एजुकेटर मीन्स ए स्किल्ड लेबर। एबे प्राय सब शिक्षा क्षेत्र रे ये जो स्किल बेस्ड एजुकेशन हमको कौन करुची ना आर्ट बेस्ड लाइफ को आमर जो बंचिबार जो कला आमठू छड़े नहीं। तेणु स्वामी विवेकानंद से अत्यंत सचेतन थिले। जेतेबेले फ्रांस यूरोप रो शिल्प विप्लव, फरासी विप्लव जेतेबेले आसुथिला सेतेबेले शिल्पर शिल्पायन होउतला, से सेतेबेले लक्ष्य करथिले जे आगामी पीढ़ी तांकर शिक्षा रे निश्चिंत भाव रे गोटे विभ्राट सृष्टि हबो। तेणु से लेखि दे जाइछन्ति जे सत्य शिक्षा माने होउची आत्मशक्तिर प्रकाश। तेणु नव वेदांत शिक्षा दर्शन आजिर शिक्षा व्यवस्था सहित गभीर संपर्क रखे। यह शिखाए जे छात्र मानक भितर थिबा दैव शक्ति को जागृत करिबा, केवल पुस्तकीय ज्ञान देवा नुहे। जिते गुड़िए पाठ्यक्रम तैयारी करा जाउछि, पाठ्यक्रम को पढ़ेबार जो कौशल शिखा जाउछि, कौनसी जगह सेठी रहु नाही जे तू अनंत असीम शक्तिर प्रतीक, तू निश्चिंत भाव रे तक करि परिबु। सबुठी गोटे टेक्निकल मॉडल को एक्सेप्ट आमे करूछु जे तमे गोटे चालाकी चतुर करी गोटे पिला मुंडरे पाठटा को भरी दियो, से परीक्षा रे ठीक भाव रे उत्तर दब। पुट द आंसर, गेट द रिजल्ट। तो एई जो एथि प्रति हमको सचेतन रहिबा पाई से कहउचंती आधुनिक स्कूल एवं विश्वविद्यालय मानकरे व्यावहारिक वेदांतर धारणा रहिबो जदी, तेबे छात्र माने मेरिट बा मार्क पई दौड़िबा बदल रे नीतिमान, दायित्वशील एवं मानव केंद्रिक हेबे। यह स्वामी विवेकानंदଙ୍କର निजस्व मत। वृत्ति जीवन एवं सामाजिक व्यवहार रे वेदांतर प्रयोग आधुनिक जुगरे अधिकांश मनुष्य तांको समयर बड़ बड़ अंश निज पेशा रे कटौछन्ति।
वी आर प्रोवाइडिंग आवर टाइम फॉर आवर प्रोफेशनल लाइफ। सकाळ 9 टारू कॉलेज जीव, सकाळ 9 टारू संध्या 5टा पर्यंत कॉलेज काम करिवो, तथापि काम सरीबनी, तमे कागज पत्र धरिक आसीबो, घरे बसी काम करिवो। ए खाली व्यक्तिगत कथा नुहे, ए सामग्रिक स्तर रे जे जो स्तर रे अछि से सही काम ही केवल करूछ। से कहउछंती या द्वारा होउछि कोन ना व्यावहारिक वेदांत एथिरे गोटे नूतन दृष्टि देखाए। से कहउछले कार्य माने बंधन नुहे, कार्य को सेवा बोली ग्रहण करिवो। यदि कार्य को सेवा बोली ग्रहण करिवो ताहले कार्य तुमको चापयुक्त करैबनी, चाप मुक्त करिवो। डाक्तर जदि निज पेशा को टंका पाई नुहे मनीषर सेवा पाई करे ताले से हला कर्मयोगी। शिक्षक जदि तार काम को पवित्र दायित्व भावे नियंती से होछने व्यावहारिक वेदांतर अनुसारी। यही धारणा आधुनिक ऑफिस संस्कृति, कॉर्पोरेट मेंटालिटी एवं प्रतियोगितापूर्ण विश्व रे मनुष्य को नैतिक मूल्य दिए। यह गोटे साधारण कथा नुहे। कॉर्पोरेट आपण माने समस्ते जो माने कॉर्पोरेट रे थिबे बा कॉर्पोरेट विषय जानुथिबे, वेरी टैक्टफुल स्किलफुल अपॉर्चुनिटी सेठी, जोठी मानवर मानवीय शक्ति को गोटे कुली मूलिया भलिया सेठी यूज करा जाए। राति नाही दिन नाही, से माने सब दिन बेला सोइबे, राति बेला काम करिवे। तेणु यही जो कॉर्पोरेट मेंटालिटी, ये जो ऑफिस कल्चर, ये जो कॉम्पिटिटिव माइंडसेट, से कहउछनी यही जो भीतर दे हम वर्तमान गति करूछु, हमको मने रखिबाकू पड़िबो जे आमे जो कर्म करूछु ता मानव जीवन सेवा पाई, ता द्वारा तमे चाप मुक्त हबो। तेणु आधुनिक मनुष्यर जो मानसिक संकट ता भीतर ता पाई व्यावहारिक वेदांतर बहुत गुरुत्वपूर्ण दायित्व रही। आमको ग्रहण करने पड़ो से साधन शैली। आधुनिक मनुष्य आज गभीर मानसिक संकट मुहरे दंडायमान। वैज्ञानिक उन्नति, प्रजुक्तिगत सुविधा, आर्थिक समृद्धि थिबा सत्वे मनुष्य मनरे शांति और संतुष्टिर अभाव देखा जाउछि। चिंता, उत्कंठा, एकाकी, एलोन फोबिया। आपण वर्तमान साइकोलॉजी रो जो डॉक्टर मानक पाखु जिबे से विचित्र विचित्र सब डिजीज रो ना सब कहउछथि। डिप्रेशन, सुइसाइड टेंडेंसी बा आत्महत्या परि मानसिक समस्या आधुनिक समाज रे भयंकर भावे बढ़ी। एभली समय रे स्वामी विवेकानंदंकर व्यावहारिक वेदांत एक मानसिक स्वरूप, मानसिक औषध स्वरूप। व्यावहारिक वेदांत मनुष्य को सिखाए से दुर्बल नुहे, तांक भितरे असीम साहस, असीम शक्ति एवं असीम संभावना अछि। स्वामीजींकर गोटे मूल उपदेश, तुमे दुर्बल नुहे, तुमे शक्तिशाली। आधुनिक युव समुदाय पाई एक गभीर मनोचिकित्सा भली वाक्य। जेतेबेले मनुष्य निजको केवल देह बेली भावे से रोग एवं मृत्यु एवं असफलता को भय करे। व्यावहारिक वेदांत कहे तुमे देह नुहे, तुमे आत्मा। यही बोध मनुष्यर मंद अवसाद, भय एवं निराशारु ताको उद्धार करे। आज विश्व रे माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, कॉग्निटिव थेरापी, ये जो पद्धति सब प्रचलित होउची ताहा आत्मसार वस्तुतः विवेकानंदंकर राजयोग एवं व्यावहारिक वेदांत सहित जड़ित। मन को संयम करिबा, ध्यान माध्यम रे अंतः शांति लाभ करिबा एवं चेतना को उच्च स्तर को उठाइबा, ए सब आधुनिक मानसिक स्वास्थ्य रे नव वेदांतर अवदान। तेणु नैतिक मूल्य एवं सामाजिक संस्कार रे नव वेदांतर एक प्रायोगिक अवदान। स्वामी विवेकानंदंक मतरे नव वेदांत केवल व्यक्तिगत मुक्तिर दर्शन नुहे, यह एक समाज परिवर्तन आह्वान। से धर्म को अंधविश्वास बा आचार रे सीमित करनथिले। तांक दृष्टि रे धर्म हेउची मानवतार सेवा। से देखिथिले भारतीय समाज जाति भेद, छुआ अछुआ, अशिक्षा, दारिद्र्य रे जर्जरित। तेणु से सेठी पई कहितले दरिद्र नारायण सेवा ही सत्य भगवान कर सेवा। यही भाव नव वेदांतर सामाजिक पट्ट। यह मनुष्य को सिखाए जे समाज रा गरीब, दुखी, निर्बल लोक माने सेवा करिबा होउची सेमानकर सर्वोच्च धर्म। आधुनिक समाज रे जेउथि स्वार्थ, लोभ एवं उपभोगवाद प्रधान, नव वेदांत सेठी एक नैतिक प्रतिविरोध भाव रे काम करे। यह सिखाए मनुष्य केवल निज पाई जीवन जीवनी, से समस्त मानव जाति पाई जीवन जीउछि। एही दर्शन आधुनिक मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और समानता चिंताधारा सहित गभीर भाव संपृक्त। यार मूल कथा समस्त मनीष मूलतः दिव्य एवं समान। तेणु यार एक ये जो नववेदांतर गोटे वैश्विक प्रासंगिकता रही। विवेकानंदंकर नववेदांत केवल भारत पर्यंत सीमित रही नथिला। तांकर शिकागोर भाषण आरंभ सेठु आरंभ करी
विश्व मंच रे ही दर्शन एक नूतन आलोक रे परिचित है। पश्चिमा दुनिया जो धर्मीय द्वंद्व संकीर्णता एवं शुष्क वैज्ञानिक चिंतन रे व्यस्त थिला, विवेकानंद सेठारे एक मानवतामय सर्वधर्म समन्वय संदेश देले। तांका दृष्टि रे समग्र धर्म एक सत्यर भिन्न भिन्न पथ, धर्म मनुष्य को विभक्त करने को नुहे बांधिबा को आज विश्व रे धार्मिक उग्रवाद, सभ्यता संघर्ष एवं द्वेष, सामाजिक विभेद जेभली बढ़ुची सेठी एकमात्र शांतिमय विकल्प हेउची नववेदांत को निज जीवन रे उत्तरित करिबा। यह विश्व को सिखाए समग्र मानव जाति गोटिए आत्मार प्रकाश। यही दर्शन आधुनिक विश्व सम्मेलन सम्मिलित उन्नति पाई, विश्वर सम्मिलित उन्नति पाई एक आध्यात्मिक आधार तैयारी करे। तेणु एथुरु एही निष्कर्ष रे आमे पहुंचुचे आधुनिक मनुष्य जीवनर समग्र अभिमुख को अवलोकन कले देखा जाए जे वैज्ञानिक उन्नति एवं भौतिक समृद्धि सत्वे मनुष्य अंतर्गत मनुष्य तार अंतर्निहित शांति रु क्रमश विच्छिन्न हेउछि। धन पद प्रतिष्ठा सुविधा समस्त किछि थिले भी मनुष्य मनरे एक शून्यता, असंतोष एवं अनिश्चयता रहिछि। एही परिस्थिति रे स्वामी विवेकानंदंकर नववेदांत वा व्यावहारिक वेदांत आधुनिक मनुष्य पई एक आध्यात्मिक समाधान भावे प्रस्तुत। नववेदांत मनुष्य को सिखाए जे मनुष्य एक भौतिक सत्ता नुहे, से एक चिरंतन दिव्य आत्मार अभिव्यक्ति। यही चेतना मनुष्य को निज प्रति, समाज प्रति एवं समग्र सृष्टि प्रति गोटे नूतन दृष्टिकोण दिए। मनुष्य जेतेबेले एही सत्य को अनुभव करे जे समस्ते एकाश्रयी चेतनार परिप्रकाश, सेतेबेले तांक मनरे घृणा, द्वेष, अहंकार, स्वार्थवाद आपे आपे क्षीण हुए। अन्यपटे व्यावहारिक वेदांत मनुष्य को केवल तत्व नुहे जीवन प्रत्येक पदक्षेप वेदांत आचरण कर वेदांत को आचरण करने पई सिखाए। यह जीवन को दुई भाग में बांटिबार परंपरा को भांगी दिए, यथा गोटे पक्षर धर्म एवं अन्य पक्षर जीविका। विवेकानंद कही जीवन एक एकत्वमय प्रवाह, तेणु धर्म और कर्म मध्य भेद थिबा उचित नुहे। कर्म हेब धर्ममय, सेवा हेब उपासनामय। तेणु यही गवेषणार विशेष भाव में देखा जाउछि जे नववेदांत एवं व्यावहारिक वेदांत मानसिक संकट, नैतिक अवनति, पारिवारिक जो भंग, शिक्षार मूल्यबोधर अभाव, सामाजिक विभेद पर आधुनिक समस्या गुड़ी को मुकाबला करने पई सक्षम एकमात्र दार्शनिक शक्ति। यह मनुष्य को कहे निज जीवन को परिवर्तन कले समाज और विश्व आपे आपे रूपांतरित हो जिवो। आज जेतेबेले विश्वर धार्मिक असहिष्णुता, हिंसा, परिवेश संकट, मानविक मूल्य अवक्षय पीड़ित, सेतेबेले विवेकानंदंकर नववेदांत एक सार्वजनीन शांति दर्शन भाव में उद्भासित आमको शिखाए आत्मार एकत्व, आचरण रे सेवा एवं चेतना रे उच्चता। सेहीपरि स्वामी विवेकानंदंकर नववेदांत और व्यावहारिक वेदांत एक केवल आकाडेमिक चर्चा शैक्षिक चर्चार विषय नुहे, बरं आधुनिक मनुष्य जीवन रे एक सक्रिय और जीवनमय दर्शन। तो मु निश्चित भाव में मोर कथा को ये रखी। आपण मैंने समस्ते दीर्घ समय धरी शुणी समय देथिबार मु मोर कृतज्ञता आपण मान को ज्ञापन करुछि एवं अनुरोध करुछि। वर्तमान डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी मौसा से अग्रवती काम को हाथ को नेबे। धन्यवाद, नमस्कार समस्त। अच्छा, हरिओम। आगे ना मु ठीक आसी पहुंचली, वर्तमान तुम काम सरला, गाड़ी रू ओल्हेली एटा आगे तेणु जहा सुंदर भाव परिवेश कल, अन्य मान समस्त मंत्रमुग्ध हो गले। मु जो गाड़ी रे आसली से गाड़ी रे अन्य जे थिले से माने भी शुणुथिले। अड़सपुर कॉलेज रे जने पढ़ुथिले से जान चालक, मु तो तन्मय हो गले। मु तो जहा सुंदर भाव में वर्णना गोटे सौभाग्य मिली। विभूति भूषण परी जने वेदांतविद से सुंदर भाव में वर्णना करुछंती। जेतिकी आधुनिक वेदांत विषय जो दिग्दर्शन मिलिला ताहा आम समस्तंक पई जीवन दर्शन। व्यावहारिक नव्य वेदांत साधारण भाव में बेरे होची वेदविद, विचार करिबा, जानिबा,
ଲାଭ ପାଇବା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରିବା ଏ ଯୋଉ ମୂଳ ହଉଛି ବିଦ୍ ଧାତୁର ପ୍ରୟୋଗ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ବେଦବିଦ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତ ମାନବତାକୁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ, ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ ଏଥିରୁ ଏହା ହଉଛି ଏକ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦର୍ଶନ। ଏବଂ ମୁଁ ବେର କଥା କହିଲି, ତାର ହଉଛି ଦାନଶୀଳତା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ହେବା କଥା। ତାର ଅର୍ଥ ଅଛି ତ୍ୟାଗ କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହଉଛି କାଟିବା। ଦାନେନ ଦୁର୍ଗତି କ୍ଷୟ, ନିଜର ଦୁର୍ଗତିକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଯାହା କରାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଭାବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଦାନଶୀଳତା। ଦରିଦ୍ର ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରିବା, ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତନ ଏଇ ବକ୍ତବ୍ୟରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଶେଷରେ ତ ବେ ଗଲା, ଦା ଗଲା, ତ ହଉଛି ତତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ, ହଉଛି ତତ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବୋଧ। ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝି ଭିତରି କଥାକୁ ବୁଝି କାମରେ ଲଗେଇବା ହିଁ ଦରକାର। ଆମେ ବହୁତ କଥା ପଢୁଛୁ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ କାମ କଲା ବେଳେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ ବା ନୀରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛୁ। ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏହାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କର ଯୋଉ ନବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ, ତାହାକୁ ଆମ ଏଇ ଲୋକ ସଂସଦର ସଦସ୍ୟଗଣ କିମ୍ବା ସମାଜରେ ଯଦି ପାଳନ କରିବେ, ତା ଦ୍ୱାରା ମହତ୍ତର ଲାଭ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ଯାହା ମୂଳରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ, ବେଦ ଅନ୍ତ, ଅନ୍ତର ଗୋଟିଏ ଅଛି, ଭିତର କଥା ଅନ୍ତ ବିସର୍ଗ ଲାଗେ, ଓଡ଼ିଆରେ ଅନ୍ତ, ଅନ୍ତ ନାଡି, ଅନ୍ତ ଭାବନା, ଅନ୍ତ ହଉଛି ଶେଷ। ବେଦର ଅନ୍ତ, ବେଦ, ସଂହିତା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆରଣ୍ୟକ, ଉପନିଷଦ, ଯାହାକୁ ସେ ପ୍ରଥମରୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଉପନିଷଦ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ, ତାହାକୁ ଗୀତାକୁ ଉପନିଷଦ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କର ଭାଷଣରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ହଉଛି ଏକ ବିବେକ ଉପନିଷଦ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଉପନିଷଦ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ହଉଛି ଆଜି ସେ ଜଗତକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଉପନିଷଦ। ସମସ୍ତଙ୍କର ବିବେକରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଯାଉ, ଏହା ହଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯାହାକୁ ବେଦୋପନିଷଦ, ବେଦର ଶେଷ ଭାଗକୁ କହନ୍ତି। ଜଣେ ବେଦର ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟକୁ, ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବ ଏବଂ ନିଜ ମାନେ ବାହାର ପଟରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜ ବାହାରେ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ, ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତେବେ ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ ଫୋନରେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୋ ପାଖରେ କିଛି ବହି ନାହିଁ, କାଗଜ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ଖାଲି ନୀରବ ଶ୍ରୋତା ହୋଇ ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ଅତି ତନ୍ମୟ ହେଲି। ଭାବୁଛି ଉପନିଷଦ ବେଦାନ୍ତ ବାକ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଯୋଉ କଠୋପନିଷଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ତୈତ୍ତିରୀୟ ଉପନିଷଦ ସେ ବେଦାନ୍ତର ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉଠି ସତ୍ୟଂ ବଦ ଧର୍ମଂ ଚର ଯାହା ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଶେଷରେ ଅଛି ଏଷା ବେଦୋପନିଷଦ ଏବଂ ଉପାସିତବ୍ୟମ୍ ଏତତ୍ ଅନୁଶାସନମ୍। ଏହା ହଉଛି ବେଦୋପନିଷଦ। ବେଦ ଜାଣିବ କିପରି? ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବସି ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବ। ନିଜର ସମସ୍ତ ଶଙ୍କା ସଂଶୟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ମୁଁ ଭଲ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାର ଧାରଣା ହଉଛି ଆମର ପ୍ରଥମ ପତନର କାରଣ। ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବାଳାଦପି ଗ୍ରହୀତବ୍ୟଂ ଯୁକ୍ତି ଯୁକ୍ତଂ ମନୀଷିଭି। ଶିଶୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ବିଭୂତି ବାବୁ ଯେତେ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯିଏ ବୟସ୍କ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏ ଗୁଣକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସାର ଗ୍ରହଣ କରିବା। ସାରକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଗେଇ ଯିବା। ଏଇ ଯୋଉ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ,
ତାହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଏତତ୍ ଅନୁଶାସନମ୍। ଏହାକୁ ଏହା ଅନୁଯାୟୀ ଜୀବନ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ବିଷୟ ନ ଜାଣିବା, ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ନ ଜାଣିବା, ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିପରି କାମ କରିବା? ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏତତ୍ ଅନୁଶାସନମ୍, ଯାହାକୁ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାଣୀ। ଈଶ୍ୱରୀୟ ବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାକୁ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କୁହାଯାଇଛି, ମାନେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଛି, ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ତତ୍ ସମ୍ମତମ୍। ତତ୍ ସତ୍ ଟେଷ୍ଟାମେଣ୍ଟ ହଉଛି ତତ୍ ସତ୍ ମତମ୍, ତାହା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ନିଷ୍ଠାପର ମତ, ଆଉ ତା ଛଡା କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ହଉଛି ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ତେବେ ବହୁତ ଗୁଣୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବିଭୂତି ବାବୁଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି, ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପଚାରିଥିଲେ। ଯଦି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ତ ସମସ୍ତେ ତନ୍ମୟ ହେଇକି ଶୁଣୁଥିବେ। ଯଦି କାହାର ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି କିଛି ଶଙ୍କା ଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ମାନେ ସର୍ବେ ତୁ ଛିନ୍ନ ସଂଶୟା, ତାଙ୍କର ଭାଷଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଶୟ ଦୂର ହେଇଯିବ। ଆମେ କିପରି ନିଜକୁ କାମରେ ଲଗେଇବୁ। ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ, ଉତ୍ତିଷ୍ଠତ ଉଠି ପଡ, ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ। ଜଣେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇଛି, ଆମେ ଧର୍ମ କଣ ଜାଣିଛୁ, ବେଦାନ୍ତ କଣ ଜାଣିଛୁ, ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବେଶ ପୋଷାକ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇପରି ତାଙ୍କ କଥା ଗୁଡିକ କହିବୁ କିନ୍ତୁ କାମରେ ଲଗେଇବୁନି, ଆର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା, ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାନ୍ ନିବୋଧତ। ବରାନ୍ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ବିଦ୍ୱାନ ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି, ଗୁଣୀ ମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି, ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନେ ପାଇକି ନୁହଁ, ପ୍ରାପ୍ୟ ମାନେ ପାଇବା କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭଲ ଭାବରେ ତତ୍ଵକୁ, ତଥ୍ୟକୁ, ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଏବଂ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ପୁନର୍ବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଯଦି ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ, ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଥାଏ, ତେବେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେବ। प्रणाम सर। हेलो हाँ सर, टिके मते टिके कहतु सर, जो वेदांत आ उपनिषद आ भितर कौन किछि बेसिक डिफरेंस टा कौन रहउची? आपन तो कहले वेदांत आ उपनिषद एक बोली कर देले, कहीं सेटा तो मते ठीक लागुनी। ये प्रश्न काहाको, मते ना विभूति बाबू को? कहले हबो, विभूति सर कहले हबो। मन दी जण गुणी लोक अछंती, ज्ञानी लोक अछंती, आपन कहले सर कहले चलिबो। हाँ हाँ ठीक अछि। उपनिषद ର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହଉଛି ବେଦାନ୍ତ, ବେଦର ଶେଷ ଭାଗ। କାରଣ ବେଦ କଣ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରକୃତରେ ବେଦ କଣ ଓಂ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତତ୍ ସତ୍, ଏ ପ୍ରକାର ଯାବତୀୟ ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝିବା କିପରି? ତେଣୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ କିଛି ଜିନିଷ ଅବୁଝା ରହିଯାଏ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦାୟଦ ମାନେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଦାୟଦ ମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ବେଦ ଥିଲା, ଅନନ୍ତ ବେଦ, ତାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭାଗ ଭାଗ କଲେ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ସଂହିତା କୁହାଗଲା, ତାକୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ଏକତ୍ର କରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଗରେ ସ୍ତୁତି ରହିଛି, ଗାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, କର୍ମକାଣ୍ଡ ରହିଛି, ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ତାହାକୁ ଅଲଗା କଲେ ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଗଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଲେ ଆମ ପରି ପଇତା ପକେଇ ଚନ୍ଦନ ମାରି ବୁଲୁଥିବା କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା, ମନ୍ଦିରରେ ଘଣ୍ଟା ବାଡଉଥିବା, ସେଗୁଡାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ବିବେଚନା କରୁଥିବା ଗଦ୍ୟ। କଣ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେଇପାରିବ, ତାହାକୁ ପଦ୍ୟ ଆକାରରେ ନୁହଁ, ଗଦ୍ୟ ଆକାରରେ ବ୍ରାହ୍ମଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାପର ସ୍ତରକୁ ଆସିଲା ଆରଣ୍ୟକ। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ କହନ୍ତି ବାନପ୍ରସ୍ଥ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ 25 ପରେ 50 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ବୟସ, ଏକ ଗାରସ୍ଥ୍ୟ ଆଶ୍ରମ ସରିଗଲା, ତାପରେ ବନକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିବେ।
वन को प्रस्थान कले प्राकृतिक सौंदर्य प्रभृति उपभोग करी जनसमाज पाई जो तथ्य को परिवेषण करिवे ताको आरण्यक रे कुआगला। से आरण्यक रे गुरु शिष्यंकर संपर्क बेसी बढ़े। तापर उपनिषद उपनिषद को वेदांत कहती। किंतु वेदांत सार उपनिषद कहले कौन बुझिबे? वर्तमान आमे शंकराचार्यंकर 11टी भाष्य थिबा उपनिषद को मुख्य बोली कहूछु। अजस्र उपनिषद अछंती। आम केन्द्रापड़ा जने करुणाकर दास अछंती, से 16-26टी उपनिषद रो व्याख्या करिसंती। ओडिया रे सुंदर गीतर लिखिसंती। याज्ञवल्क्य उपनिषद, 108 उपनिषद, बहुत उपनिषद अछि। उपनिषद रो अर्थ ला उप निकट को, नी रे निश्चित भावरे, सद माने बसी बुझिबा। एठारे गुरुंक ज्ञान के परीक्षा करे ना। गुरु को शंका दूर करने प्रश्न हुए एवं गुरु ताहार जहा दरकार ताको भल भाव बुझाई शिष्यर आहुरी जहा दरकार ताको मध्य बुझाती। तेणु उपनिषद होची वेदांत। वेदटा कौन विभाग विभक्त करिवे? वेदर शेष अवस्था कौन ना उपनिषद को जानीगले आ वेद किछि जानिबा दरकार नाही। गीता सब बुझीगले आ किछि बुझिबा दरकार नाही। जो सुंदर भाव एकादश एकादश अध्याय कहुई जे जहा को बुझिले आ किछि बुझिबा दरकार नाही, ताहा होची गीता। तेणु जहा को जानिले आ किछि जानिबा दरकार नाही। उपनिषद रहस्य को वेदांत को जानीगला परे आउ कौन से भाषण दबा किंबा तर्क करिबार किछि आवश्यकता नाही। जहा हेले तो सब विश्व देख मधुमय। तेणु से उदात्त माणी रे सब किछि रहिछि। जहा आपणकर शंका अछि, जो श्रद्धा अच्छी आपनकर संशय रही वेदांत कौन उपनिषद। आमर असुविधा होची लोके विभिन्न प्रवचक मानक ठारू सुनी विभिन्न गणमाध्यम शुणी विचलित हो जाउछन। तेणु आमको विवेकानंद साहित्य, विवेकानंद दर्शन जेमिति विभूति बाबू पढ़ी विभूति बाबू जेमिति वर्णना कले आम से दर्शन कले से बही को पढ़िले अपन सुविधा देखिले से प्रकृत वेदांत उपनिषद वेदांतर सार कौन, सार कथा कौन, गीतार सार कौन। गीतार सार शेष श्लोक कही दिया गला, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर मतिर्मम। ये हूँ वेदांत दर्शन वाक्य। तेणु जोठारे स्वामी विवेकानंद परी आदर्श महापुरुष अछंती से जो तांका दृष्टिकोण को वर्णना करिसंती ताहाको जदि आमे ग्रहण करिनेबा आमर उपनिषद जनित ज्ञान वेदांत जनित ज्ञान शंका सहज दूर हो पार। मु भावुची आपण संतुष्ट होइतबे। जदि संतुष्ट न होइतबे तेबे हेतिपय मु दुख प्रकाश करूची। परवर्ती समय आउर प्रांजल भाव आलोचना करिया को चेष्टा करिवा। सर जेतिकी शंका थिला किछि तो गला, तथापि आपण जदि आगामी दिन रे आउ टिके अधिक से शंकाटा के मोचन करिवे आउ टिके भलो हबो। हां बहुत बहुत आमे खुशी हेलु आपनकर आग्रह देखि। तेणु एठी उपनिषद प्रकृत रे ज्ञान हला श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आपनकर यथेष्ट श्रद्धा अछि तेणु आपनकर निश्चित वेदांत जनित ज्ञान सब विकसित हेबो। पुनर्बार आमे आगे जीवु। अन्य सब कार्य यदि प्रश्न किछि थाए नले ता परवर्ती कार्यक्रम आम सुश्री ऐश्वर्या किंबा विजयिनी देवी देखिए कौन करथिबे से कार्यक्रम अछि। मु से कार्यक्रम बाहर कर पारिनी। सर आ गोटे विभूति सर को आउ टिके गोटे प्रश्न अछि जे जोटा विवेकानंदंकर जो कहले आपण नव वेदांत बा जोटा व्यावहारिक वेदांत ये तो मूल वेदांत ठारू कौन से दृष्टि रे भिन्न नुह, ताले पुणी नव वेदांत कहीं कहला को? आरंभ ए विषय रे कहिथिली जे पारंपरिक वेदांत दर्शन ठारू स्वामी विवेकानंदंकर वेदांत दर्शन भिन्न नुहे, किंतु तार तर्कणा भिन्न भाव में करा जायछि। कारण समयर आह्वान को नहीं शास्त्र को ग्रहण करा जाए।
तेणु जो वेदांत को जार परंपरार जो शास्त्रीय बौद्धिक चर्चा थिला सेतेबेले जीवन एवं जीविका एमती आमे पाठ पढ़िलु पाठ पढ़िलु लाइफ गोटे पटे जीवन गोटे पटे वृत्ति आउ गोटे पटे से सब समय सेतेबेले नथिला तेणु सेतेबेले गोटे बौद्धिक परंपरा थिला तेणु से वेदांत से जो तत्व स्वामी विवेकानंद समय बेलू से तत्वर व्याख्यार गोटे आधार बदलैले स्वामी विवेकानंद से कहले जे वर्तमान जो समय जो द्रुत शिल्पायन हो आसला लोक माने यांत्रिक सभ्यता प्रति आकर्षित हेले आम शिक्षार ढांचा बदलिला आमे माने जो जो पद्धति रे पाठ पढ़ुलु से सब बदली गला तेणु यही परिप्रेक्षी रे आधुनिक शिक्षार परिप्रेक्षी रे वेदांत को केमिति लोक पढ़िबे तेणु सी से समान वेदांत को गोटे प्रयोगाभिमुखी वेदांत कले से कहले जे वर्तमान केवल आत्मोन्नति हबनी आमको समस्त को एका संगे नहीं उन्नति करने को पड़ो तेणु गोटे आत्म उन्नति सहित गोटे वैश्विक उन्नतिर आवश्यकता थी से अनुभव कले से देखिले वर्तमान सामाजिक उत्थान दरकार वेदांतर मूल तत्व होउची जे सेथिरे व्यक्ति केंद्रिक उत्थान हब सेथिरे गोटे जीव तार अज्ञानता को बुझिब तार अज्ञानता को जानी सारिबा परे तार उत्तरोत्तर उन्नति हब तापरे से ब्रह्म को बुझिब ब्रह्म पर तार शरीर को बुझिब अवयव को बुझिब सूक्ष्म शरीर को बुझिब तार निजस्व डेभलप हब एथिरे समाज रा किछि हबनी किंतु स्वामी विवेकानंद कहउछंती निजर केवल उन्नति करदेले हबनी आमको ताकू कर्म रे परिणत ताकू आम कर्म रे उत्तरित करी आम गोटे समाज को उन्नत करिया पड़िबो तेणु सेथि पई ताकू विवेकानंद कहउना एटा गोटे नव वेदांत गवेषक मान कहउछंती जे जो ढंगर स्वामी विवेकानंद कहिले तार ना होची नियो वेदांत बा नव वेदांत एवं एकु प्रैक्टिकल वेदांत बोली स्वामी विवेकानंद निजे कहिसंती जे वेदांत इज नॉट मींट फॉर द टेक्सचुअल स्टडीज वेदांत केवल पाठ पढ़ार विषय नुहे बा वैचारिक विषय नुहे वेदांत होची प्रायोगिक विषय तापर जो परवर्ती आचार्य माने सन्यासी माने आसिले सेमानक भितरे प्राय आपण माने ना सुनिथिबे स्वामी रंगनाथानंद जे गोटे समय रे संपूर्ण रामकृष्ण मिशन रो प्रेसिडेंट थिले सी तांक समय रे से वेदा जो प्रैक्टिकल वेदांतर कांसेप्ट को बहुत माने विस्तार भाव रे करिदिर समस्त पाखरे नेगिर पहुंचै देले तेणु यह निश्चित भाव में पारंपरिक वेदांत टू भिन्न नुहे किंतु व्यक्ति केंद्रिक उन्नति सहित समाज केंद्रिक उन्नति को एका धार रे हमको नबाकू पड़िबो एवं आम जीवन रे ताकू प्रयोग करबा को पड़िबो सेथि पई तार ना दिया गला नव वेदांत बाता गोटे नामकरण करा हेछि किछि भिन्न नुहा सेते या किछि भिन्न नु आज्ञा सर आज्ञा रखु सर धन्यवाद सर आज्ञा शुभ संध्या माने वर्तमान जो युव समाज रो जो भली उत्कट समस्या तार निराकरण बा समाधान पाई डॉक्टर विभूति सारंकर जो समाधान देले ता अत्यंत माने वर्तमान प्रायोगिक दृष्टि बहुत उच्चकोटीर उपादेय आउ सेथि बहुत धन्यवाद देवी मते इथरे डाकी जॉइन करथारु बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीताराणी नायक वर्तमान कहउछंती से होउछंती राजधानी कॉलेज रो ओडिया विभाग रो अध्यापिका डॉक्टर गीताराणी नायक से आमठू वयोज्येष्ठ तेणु से मु तांको देइथिली जे आज एमती गोटे कथा अछि आपण आसिके आम सहित जड़ित होंतु बोली से वर्तमान तांकर शुभेच्छा जणाउछंती मैडम बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गीताराणी नायक एवं राजधानी कॉलेज रो किसी पुरातन छात्र किसी नूतन छात्र आम सहित मध्य जड़ित हेकरी अछंती जा मौ साहेब कहउतले जे जोतबे हुए बहुत लोक आसंती एक्चुअली मु किसी हमर पिला मान को मध्य कहे जे तम माने एथरे टिके जड़ित हेकि रुह तने से माने आसिके जॉइन करि छथि समस्त समस्या युव समाजर समस्या को बहुत सुंदर भाव रे समाधान रो बाट मार्ग देखे आगे सेतमे आपनकर अनुष्ठान आउ विभूति सार को अनेक अनेक धन्यवाद आगे समस्त धन्यवाद समय तो अतिक्रांत होगा जाउची गोटे शंका आपनक को ऊपर उपस्थापित करूची जे हमर जो उपनिषद गीता को तो उपनिषद रो सार बोली कहा जायछि तेणु जो उपनिषद गीता रे जेमिति भगवान जो अवतार हुए धरावतरण हुए
सेमती उपनिषद रे कोठी प्रमाण अछि कि जे भगवान ये धरा पृष्ठ को आसंती? ମୁଁ ଯେତେ ଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବୁଛି ଆମେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ୟାର ସମ୍ବନ୍ଧ ବୋଧହୁଏ ବହୁତ କ୍ଷୀଣ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଗତି କରୁ ସାର୍ ଯେ ଆମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ଆମର ଯାହା ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆମେ ସେ ବିଷୟକୁ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ବିଚାର କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇଥିରେ ମଜ୍ଜି ରହିବା। ଅବତାର ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ତା ପାଇଁ ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନାର ପଥା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମର ଆଜିର ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବେଦାନ୍ତର ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କଣ, ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଆଜି ଆମେ ଇଏ କରିଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅବତାର ବିଷୟରେ ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ସମୟରେ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ଆମେ ସେ ବାବଦରେ ସାର୍ କଥା ହେବା। ठीक अछि सेटा वेदांत सहित संश्लिष्ट बोली पचारली जे वेदांत रे अवतारवाद रो कोन भूमिका अछि कि नाही उपनिषद रे अवतारवाद एक भिन्न विषय। आगे आगे ओके हां आज्ञा ठीक आगे धन्यवाद धन्यवाद बहुत भल प्रश्न पचारिले। श्वेताश्वतर उपनिषद देखिए प्रथम एकोहम बहुश्याम तापर वर्णना करा जायछि जहा जहा किए को अवतार रे आसीबो केतेबेले को गुण थिले केउ देवत्व आरोपण करा जाय। श्वेताश्वतर उपनिषद रे यो एकादश उपनिषद शंकराचार्यंकर केत कौन 10 किंतु सेथिरे श्वेत एवं अश्वतर अश्वेततर किपरि ज्ञान होची एपरि वेदांत रे जंग ब्रह्म वेदांत विदो वदंती ये होची ब्रह्म वेदांत सएक एव प्रभुर द्वितीय। श्वेताश्वेतर उपनिषद रे कथा वर्णना करा जायछि। आउ थरे प्रसंग आरंभ कले जो उपनिषद वाङ्मय रे जोटी सर्वधर्म समानत्व एवं सांप्रदायिक सद्भाव किपरि उपनिषद रे केउ केउ जगह रे किए अवतार ग्रहण करिसेंती कौन उपकार करिसेंती ताहाकू आमे आलोचना करिबा। तेबे आज प्रश्न आपनक जिज्ञासा को मो शत शत प्रणाम जणाउछि कारण गोटे भल विषय बाछिदेले आमको खोजिबाकू पड़िबो जतिक अछि मो पाखरे तत्कालिक समय तो 8टा बाजिलानी आउ कोन ता भितर बाहर करी विभूति सुंदर भाबरे उत्तर देई देले जे हमर एटा प्रसंग भिन्न हमर प्रकृतर छात्रर कर्तव्य होची से प्रसंग अनुଯାयी पचे तथापि जेते बेले से प्रसंग विच्युत हो जाए कौन से प्रकार गुरु ताको सांत्वना दे बुझे दियंती अरे बाबा भल प्रश्न पचारिछु पर श्रेणी रे हम आलोचना करिबा। या आपन को धन्यवाद एवं आपन ठारू आशा करूची परवर्ती पर्याय रे यार उत्तर पाई बोली धन्यवाद। हां निश्चय निश्चय मोर ठारू कोन से त अपौरुषेय तेणु गुरु शिष्य परंपरा क्रम रे जहा आसीची सब जहा सियाडू आसीची से माध्यम रे आसीबो आमे त निमित्त मात्र। हो तो अन्य कार्य को धन्यवाद अर्पण अन्य सब कोन जहा थिबो ताकू देखि जो मानक ना अछि सुश्री ऐश्वर्या ताकू काम को परिचालना करा। किशोर चंद्र दास को अनुरोध करी से धन्यवाद अर्पण करेंगे। हाँ अभय बाबू अच्छा कौन ठीक है सर। आज पाठचक्र सभापत्य करुवा लोककवि तथा संस्कृत विशारद डॉक्टर कालीप्रसन्न शतपथी आज वक्ता डॉक्टर विभूतिभूषण महापात्र एवं उपस्थित स्वामी विवेकानंद लोक संसदर समस्त सम्मान्य सदस्यगण को मु किशोर दास प्रणाम करुच्ची एवं शुभ संध्या जनाऊँ। तो मते आज धन्यवाद अर्पण करने दायित्व दिखाई। प्रथमे तो आमर सभापति तांकर व्यस्त कार्यक्रम सत्वे गाड़ी रे थाई सब कथा को ध्यान रे सुनी पहुंचला परे से मध्य अनेक ज्ञान तत्व विषय कहले प्रश्न जवाब भी देले एवं आगु मध्य उत्साह रखिछंती आश्वासन दौरान आमको आहरी ज्ञानवर्धक कथा कहे से सभा कार्य टी सुचारू रूपे परिचालना करते एवं सुचारू रूपे समाप्त आड़ को जाऊँगी मु समस्त तरफ अशेष धन्यवाद दूची। एबे आमर वक्ता एवं विषय थिला स्वामी विवेकानंद दृष्टि वेदांत यह डॉक्टर विभूतिभूषण महापात्र एते हृदय बसी एते सांप्रतिक एवं वास्तविक रूप से व्याख्यान कले यार प्रमाण केवल आज उपस्थिति बहुची जो उपस्थिति संख्या मुझे देखुली
ବହୁତ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଗ ପୂର୍ବ ମିଟିଂ ଗୁଡାକରୁ ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଶେଷ ଯାଏଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଆମେ ଏଥିରୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉଟା କେବେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ବେଦାନ୍ତ ଭଳି ଆମେ ଯୋଉ ପାରମ୍ପରିକ ତଥ୍ୟ ବା ଯେମିତି ଜାଣିଥିଲୁ ଏବଂ ଆଜି ଯୋଉଟା ଆମର ବକ୍ତା କହିଲେ ଯେ ନବବେଦାନ୍ତର 5ଟି ସୂତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବହାରିକ ବେଦାନ୍ତର 4ଟି ସୂତ୍ର, ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଜି କେବଳ ଅନେକ ସମସ୍ତ ନୁହଁ, ଏଠି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ ଏକ ନୂଆ ତତ୍ତ୍ୱ, ନୂଆ ଜାଣିବାର ବିଷୟ। ତ ଏଥିଲାଗି ଯେମିତି ଥରେ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଆମ ଲୋକ ସଂସଦରେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କାରଣ ଆମେ ତ ଧନ୍ୟ ହେଲୁ ଶୁଣିକିରି, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ କଣ ଦବୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଲୋକ ସଂସଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଅର୍ପଣ କରୁଛି, ହୃଦୟରୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆଶା ରଖୁଛୁ କି ଏଇଭଳି ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉ ଯୋଉଠି ଆହୁରି ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମକୁ ଜିଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହାପରୁ ଆମର ଆଜି ସଂଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସୁଶ୍ରୀ ଅସୁଜା ସ୍ୱାଇଁ। ସେ ଏଇ ପାଠଚକ୍ରର ଶେଷରୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା ମହେଶଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ବନ୍ଦନା ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସୁଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ବିବେକ ପାଠ କରୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବେ ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବେ ଆମର ଶ୍ରୀମତୀ ଉଷାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଗ୍ରୀମ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଶାନ୍ତି ପାଠ ପରେ ମ୍ୟାଡାମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ସ୍ୱାଇଁ ଆଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର। ଉଷାରାଣୀ ବୋଧେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅଭୟ କୁମାର ନାଇଁ ସୁତାର। ହଁ, ମୁଁ ତାହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତି ପାଠ। ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ବରିଷ୍ଠ କନିଷ୍ଠ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଜିର ଯୋଉ ନବ ଦିଗନ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲେ ଆମକୁ ବିଭୂତି ସାର୍, ନବ ବେଦାନ୍ତର ଅବତାରଣା କରି ଯାହା ଆମକୁ ଡିପ୍ରେସନ ଆଡୁ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଆଡକୁ ନେଇଯାଉଛି, ସେ ପାଇଁ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତାର ସହିତ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଉଷାରାଣୀ ମଲ୍ଲିକ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ओम शांति शांति शांति।